Dear friends, there is a great hope for us today प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए एक महान आशा है as God is going to speak to us directly. जब परमेश्वर हमसे आज सीधे बात करने जा रहे हैं। Receive this word. इसलिए इस वचन को ग्रहण करें। It's as per Exodus 14:14. निर्गमन अध्याय 14 वचन 14 के The अनुसार Bible says the Lord will fight for you. बाइबल कहती है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, You only have to be silent. इसलिए तुम चुपचाप रहो। What a great promise this is. कितनी महान परमेश्वर की वाचा है। Today there might be competition in your business trying to cut off your business or make it come to loss. आज हो सकता है आपके व्यापार को नीचे गिराने के लिए या फिर नुकसान में लाने के लिए होड़ They हो। might be trying different things. हो सकता है कि वो कई तरीके आजमा रहे Or हैं। somebody might be trying to fight for your job. हो सकता है कि कोई आपकी नौकरी के लिए लड़ रहा है। And they might try to put you down with so many things. हो सकता है कि वो आपको नीचा गिराना चाहते हो कई प्रकार And से, you might be in pain because of that. और आप दर्द में हो सकते हैं इन कारणों के कारण। But our job is not to go and make enemies out of them लेकिन हमारा कार्य यह नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी लें or try to use their tactics and cut off their legs. और उनकी नीति से उनको नीचे गिराएं। This verse says you only need to be silent as the Lord fights for you. यह वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो जब यहोवा तुम्हारे लिए लड़ता है। Our victory is not doing battle directly with them. हमारा जय उनसे सीधे युद्ध कर कर नहीं है, It is to battle in prayer वह प्रार्थना में युद्ध है। and say, Lord, you fight for me. और कहें कि परमेश्वर आप हमारे लिए लड़े। Fight on your knees, my friends. अपने घुटनों पर लड़े दोस्तों। We have learned to do that. हमने सीखा है इसे करने And के in लिए। every battle we have faced in Jesus calls or Karunya, कारुण्या में और यीशु बुलाता में हर एक युद्ध जो हमने देखे हैं, the Lord has risen up and gone before us. परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़ा हुआ और आगे गया He has है given us complete victory. और उसने हमें पूर्णता जयवंत किया। In the olden day battles, the Lord would fight for his army, पुराने नियम के समय में परमेश्वर स्वयं आप लड़ता था for his people. अपने लोगों के लिए, And he would create a confusion between the और enemies. दुश्मनों के बीच में भ्रम डाला करता था They would cut each other and be destroyed. और वे एक दूसरे को नाश कर दिया करते। God will do amazing acts. परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य को करेगा। There was a person, a mother and a daughter who came to pray. एक माता और उनकी बेटी प्रार्थना के लिए आते थे। Mother said her husband is gone from her and he is nowhere to be found. और माता ने कहा कि उनके पति जो है वो चले गए हैं और कहीं मिल नहीं पा रहे हैं। My daughter and him are completely separated. मेरी बेटी अपने पिता से अलग हो गई है, Please pray. कृपया प्रार्थना करें। And as I prayed with them, और जैसे मैंने उनके साथ in प्रार्थना की, the meeting next month, अगले माह की सभा में they had amazingly brought the husband who had come back out of the blue. वो अपने पति को लेकर आई जो अद्भुत रूप से वापस आ गया And था he said, I want to live with you. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना The चाहता हूँ। Lord fought for them परमेश्वर उनके लिए लड़ा as they fought in prayer. जैसे वो युद्ध प्रार्थना में Come, लड़े। let's pray and receive this miracle. आइए इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को ग्रहण Lord, करें। we claim this verse. परमेश्वर हम इस वचन को ग्रहण करते Lord, हैं। our battle is in prayer, Lord. हमारा युद्ध तो प्रार्थना में है। As we hope in you, जैसे हम तुझ में आशा धरते you are हैं, the one who does justice for us. तू ही है वो जो न्याय करता है। Remember this verse, Lord. अपने इस वचन को याद करें, Remember this promise, Lord. इस वाचा को याद करें। Fight for your children. अपने बच्चों के लिए They लड़ें। trust in you, Lord. वो आप पर भरोसा करते They are हैं, defenseless. उनकी ढाल नहीं है। Lord, you be their defense. परमेश्वर आप उनकी ढाल You बने, bring their justice. आप उन्हें न्याय दिलाएं, You bring a miracle into their life. उनके जीवन में आश्चर्य कर्म लेकर आए Let the enemies fall by themselves. और उनके दुश्मन खुद से गिर जाएं Lord, let them come and say, we cannot have enmity against you. और वे खुद से आकर कहें कि हम तुमसे बैर नहीं रख सकते, We will be peaceful to you. हम तुम्हारे साथ शांति We want to रखेंगे, be your friend. हम तुम्हारे दोस्त बनना We चाहते want हैं, to work with you. हम तुम्हारे साथ कार्य करना Let it चाहते हैं। happen, Lord. ये होने दे Let the परमेश्वर, situation completely change. यह परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाए। Let victory come in your children's hand. आपके बच्चों के हाथों में जय आ जाए, Give them complete victory. उन्हें पूर्णता जय दीजिए। Miracle right now. एक आश्चर्य कर्म In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। May God fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़े Give you victory. और आपको जय दे। We as a family are coming to Chhattisgarh. हम एक परिवार के रूप में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। Thank you, Jesus.
to pray for you at the Bastar Prayer Festival. कि आपके लिए बस्तर प्रेयर फेस्टिवल में आपके लिए प्रार्थना करें। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। God who opens the windows of heaven. एक ऐसा परमेश्वर जो आसमान के झरोके खोलकर they will experience his mighty miracles. उसके बड़े चमत्कारों को वो अनुभव करेंगे। Julie, you are here. मुझे जूली You are saying, I am carrying a child in my womb. और आप कहती हो कि मेरे गर्भ में संतान है। मोर पेटरे गर्भ छे। The doctors are saying there are complications in the child's body even as the child is in the womb. और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में है उसके शरीर में कुछ तकलीफ है, ठीक नहीं है। वो बच्चा तो बहुत कमजोर है, कैसे हम पैदा करेगा कि नहीं बोल के डॉक्टर खुद बोले। Now Jesus heals the child which is in your womb, Julie. जूली, इस समय जो बच्चा आपके गर्भ में है परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दे रहा है। ये है मेरा छोटा बच्चा अभिषेक। ओल्ड डॉक्टर दिनाकर प्रोफेसी किए थे। The Lord turns our sorrow into joy. प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देते हैं। From the 8th to the 10th November. 8 से 10 नवंबर तक। जगह है धर्मपुरा ग्राउंड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 0771 433 5600। Come as a family, let's pray together. आइए एक परिवार के रूप में एक साथ जमा हो और एक साथ प्रार्थना करें। Jesus will come and turn your sorrow into joy. यीशु आकर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे।